Hi everyone. So today we will be continuing the same series, the marathon series for lecture exam biology paper 2. So let's get started with today's session. Here we go with the question number 1 for today. So my dear students, here is where we already left. So let's get started with this part. Now, if I talk about the sister chromatids, at which stage does they separate? At which stage, like this is a chromosome, say for example, at which stage this separates into this form? Very good. At what stage do they separate? So basically, they separate during the, they separate during the anaphase. Okay. At anaphase, the chromatids separate, okay, and they go towards the pole at the telophase. They go towards the center. Chromosomes lie at the center towards metaphase. If it comes how you remember it, it's PMET, basically. All right, my dear students. So it's PMET. Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Let's have a look here with the next part. Colchicine inhibits. What does colchicine inhibits? Actin polymerization, microtubule formation, ATP synthesis, or translation. Colchicine inhibits actin polymerization, microtubule formation, ATP synthesis, or translation. Very good, my dear students. So, colchicine actually inhibits the microtubule formation, thereby impacting the spindle formation as well. Okay. All right. Crossing over occurs during. At which stage does the crossing over takes place? Crossing over takes place during which stage? Leptothene, zygothene, pachytene, or diakinesis? Very good. So the correct answer goes to be your yes, it is your pachytene stage. And pachytene stage is the stage which comes under the prophase 1 of meiosis. Under the prophase 1 of meiosis, pachytene stage is the one where the crossing over takes place. What happens in the crossing over? For example, here, and say for example, I make it somewhat here. This way the crossing over takes place. And it occurs in the prophase 1 of meiosis under the pachytene stage. All right. Have a look at the next one. Chiasmata becomes visible during pachytene, diplotin, leptotin, metaphase 2, that's B, diplotin. Synaptonemal complex कौन सी phase में बनता है? It forms in zygote. It forms in anaphase. Absolutely correct. It is formed in zygote. Okay, so zygote is the one which forms the synaptonemal complex. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होते हैं, दोनों पास होते हैं, तो फ्रॉम हेयर वी कैन अंडरस्टैंड सिंपली. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ओरिजिनेट ड्यूरिंग. जो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ओरिजिनेट करता है ड्यूरिंग मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस. शाबाश. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ओरिजिनेट करता है. Yes, so it originates during what? During the metaphase 1, independent assortment. ठीक है. और इस metaphase 1 of meiosis. ठीक है. ये of meiosis चल रहा है क्योंकि माइटोसिस की तो 1-2 होता ही नहीं है. इट इज ऑफ meiosis जिसका 1-2 आता है. ऑल राइट. डीएनए एप्लीकेशन कौन से स्टेज में होती है? डीएनए एप्लीकेशन होती है, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक. डीएनए एप्लीकेशन होती है एस फेज में, बिकॉज एस फेज इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड इट इज देयर बाय रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द डीएनए. साइक्लिन्स किसको रेगुलेट करते हैं? साइक्लिन्स रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को. कैसे?
क्या एक्टिवेट करते हैं तो सेल साइकिल रेगुलेट होता है? एटीपीएज, सीडीकेज, राइबोसोम्स या हिस्टोन्स? सो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यू वुड कम टू नो अबाउट यस जो आपके एटीपीएज हैं, ये एटीपी जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं इन द सेल रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, ठीक है। फाइनली एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अगर सीडीकेएस की बात करती हूँ तो ये क्या होती है? साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेजेस होते हैं। ये एक्चुअली ये भी प्रोटीन के टाइप ही हैं, ठीक है। ये सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो साइक्लिन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को बाय रेगुलेटिंग द सीडीकेएस। आई एम राइटिंग इट अगेन, इट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। सो यू हैव टू बी श्योर बाय दिस, ओके। द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इज लोकेटेड इन, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहाँ लोकेटेड होता है? G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में या M फेज में? हाँ, और साथ में एक चीज और आती है कि जो CD केस की मैं बात कर रही हूँ सेल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? रेगुलेशन करता है, एक्टिवेट करता है सेल साइकिल को। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सो जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है सेल साइकिल में, हाँ, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जो होता है दैट इज R पॉइंट, इसको बोलते हैं R पॉइंट, ठीक है। और ये जो R पॉइंट होता है ये डिसीजन मेकिंग होता है इन द लेट G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब इस फेज से पास करता है जब सेल इरिवर्सिबली कमिट करता है कि अब वो डिवाइड करेगा। देखो कैसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी होता है। और रेस्ट्रिक्शन जो है ये कहाँ पर आप बोलोगे? इट इज समवॉट लोकेटेड नियर व्हाट? नियर द G1 फेज, ठीक है। 2 से 3 घंटे अराउंड 2 to 3 आवर प्रायर टू ऑनसेट ऑफ, किसको ऑनसेट? prior to onset of onset of S phase, ठीक है। once pass the R point cell will complete DNA replication, और सेल जो डिवीजन है वो मतलब इवन इफ ऑल द एक्सटर्नल ग्रोथ सिग्नल्स आर रिमूव्ड फिर भी ये चलता जाएगा। तो नो, लाइक इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर से ये वापस नहीं आने वाला है। वंस इट हैज पास्ड इट विल कंटिन्यू टू डू इट्स प्रोसेस, कंटिन्यू टू मेक द साइकिल कंप्लीट, ठीक है। नाउ दीज क्वेश्चंस आर लिटिल ट्रिकी वंस दो, ओके। कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को और कोलेस्ट्रॉल फिल करता है फॉस्फोलिपिड्स की स्पेस को, तो दोनों सही हैं, आपने आंसर ही देख ही लिया है। अभी ये वाला ए है क्योंकि ऑटोनॉमस और खुद से पास ये है। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ, और ये बिना सेल डिवीजन के रेकर करती है इसकी डीएनए एप्लीकेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। चलो अभी ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ लिख आती हूँ, इनमें से बताएंगे मुझे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट। कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? एक्वापोरिन्स पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लिपेज एटीपी को, हाँ, ऊपर वाले जो है ना जो अभी हमने किए इसका कहीं ना कहीं रिलेशन पीछे वाले क्वेश्चंस के साथ है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, डू नॉट वरी, ठीक है। एक्वापोरिन्स जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिलिपेज जो है वो रिक्वायर करता है एटीपी। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इम्पैक्ट करता है और इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसमें अगर आप ध्यान दें तो देखो स्टेटमेंट, हाँ 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 हाँ, आई विल शो यू ना, ये देखो, अब बताओ, नाउ यू टेल मी। एक्वापोरेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, सही है, हाँ, मैंने पहले भी बोला एक्वा वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लिपेज रिक्वायर्स एटीपी, फ्लिपेज को एटीपी चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है फ्लिपेज के क्या रोल हैं, फ्लिपेज जो है वो क्या है? ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम है। कौन सा मेम्ब्रेन है ये? यानी मेम्ब्रेन के बीच में, हाँ, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, उसको ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम बोलेंगे। फ्लिपेज इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। ये एटीपी ड्रिवन होता है। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है? देखिए, जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, व्हेन एवर देर इज अ हाई टेम्परेचर, तो ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है ना, ये उसको क्या करता है? उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो फ्लूइडिटी को रिड्यूस कर सके और मैनेज कर सके। क्या मैनेज कर सके? इंक्रीज कर सके रिजिडिटी को।
ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अबाउट द करेक्ट आंसर गोज टू बी योर 1, 2 एंड 3। ये वाला आपका सही हो जाता है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 गोज राइट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आपके स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, तो आप मुझे बताओगे 1, 2, 3 है क्वेश्चन का, ये वाला पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं ना। ठीक है, अभी यहाँ देखो, अब मुझे बताओ आंसर। शाबाश, कौन सी स्टेटमेंट सही है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब फेमस हो गया हुआ है। ठीक है, हर कोई इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, डबल मेम्ब्रेन होती है, हाँ कि ना? डबल मेम्ब्रेन होती है, हाँ कि ना? शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, 70 राइबोसोम होता है इसके पास। बाय द वे, इसके पास राइबोसोम होता है कि नहीं होता है? शाबाश, राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है इसके पास, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। और बताओ, एटीपी सिंथेसिस है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारा देखें ना, तो एक चीज तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं दिस, यस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रीजन बीइंग कि सर्कुलर डीएनए भी है, डबल मेम्ब्रेन तो होता ही है, डीएनए होने की वजह से सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं इसको, 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेसिस भी करता है, तो ऑल आर करेक्ट। अब ये बताएंगे आप, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे आप। ये लो, आपके सामने आ गए ऑप्शंस। 1 सेकेंड, चलिए, अब बताइए मुझे इसका सही आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये लीजिए, साइनेप्सिस अकर्स। देखो, आपको मियोसिस के बारे में बताना है कि मियोसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, साइनेप्सिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, और जेनेटिक वेरिएशन होती है। तो एक चीज तो यहाँ पक्की है कि तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन पहली भी होती ही है। साइनेप्सिस का मतलब ये होता है कि हाँ, जंक्शन बन रहा है, जैसे ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। साइनेप्सिस बनता है तभी जाके कहीं क्रॉसिंग ओवर होगी, और तभी जाके क्रोमोसोम नंबर भी आधा होगा, तो ये जेनेटिक वेरिएशन को क्या करेगा, प्रोड्यूस भी करता है। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, चलो, अभी नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो हैव टू सी वन मोर पॉइंट विच इज एसोसिएटेड विद द म्यूटेशन। तो देखिए यहाँ पर, दिस इज हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, डायरेक्ट आंसर देना, इसमें ये वाला सिस्टम अब नहीं लगेगा। ठीक है, म्यूटेशन जो है वो डिसरप्ट करता है डायनेन आर्म्स ऑफ सीलिया को, विच प्रोसेस इज डायरेक्टली अफेक्टेड। देखो, अगर म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, सिंपल है, अगर म्यूटेशन हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो जो सीलिया है, सीलिया के जो डायनेन आर्म्स हैं उसको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, हाँ, डायनिन जो उसके आर्म्स हैं ये उसको इम्पैक्ट करेगा। सो डायनिन आर्म्स क्या होते हैं? डायनिन आर्म्स कुछ नहीं है, दीज आर काइंड ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये यूकैरियोट सीलिया में पाया जाता है। सीलिया आपको पता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये जो सीलिया होता है उसमें एक डायनिन आर्म होती है जो क्या करता है, मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो अभी आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी किसी यूकैरियोट को, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाँ, एटीपी हाइड्रोलिसिस में इनटू द मैकेनिकल वर्क। तो इससे क्या करता है, मैकेनिकल वर्क बनाता है यूजिंग द एटीपी इंपॉर्टेंटली। तो अब आपको बताना है कि अगर म्यूटेशन डायनिन आर्म्स ऑफ सीलिया को इम्पैक्ट कर देगी तो कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन इम्पैक्ट होगा, सीलियरी बीटिंग इम्पैक्ट होगी, डीएनए रेप्लिकेशन इम्पैक्ट होगी, या प्रोटीन सिक्रीशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी? सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी सीलियरी बीटिंग। ठीक है, सीलिया के साथ एसोसिएटेड है, सीलियरी बीटिंग होगी, और अगर सीलियरी बीटिंग इम्पैक्ट होगी तो इट विल लीड इन व्हाट, इसकी वजह से लोकोमोशन में भी इम्पैक्ट आएगा। गॉट माय पॉइंट? चलो, अब एक और आता है कि ड्रग जो है वो एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम को प्रिवेंट कर सकता है। मोस्ट लाइकली इफेक्ट इसका क्या होगा? ठीक है, एक ड्रग है जो कि क्या कर सकता है, एसिडिफिकेशन, किसकी एसिडिफिकेशन, लाइसोसोम की एसिडिफिकेशन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है। तो बताओ क्या लाइकली इफेक्ट आएगा? एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगी, लाइसोसोमल डाइजेशन फेलियर हो जाएगा, इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन होगा, माइटोसिस इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा?
लाइसोसोम एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है? एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम का सिंपल भाषा में अगर मतलब बताऊं तो ये यहाँ पर ये मतलब होता है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं, अपना हाई एसिडिक इंटीरियर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, टिपिकली इनका पीएच रहता है 4.5 to 5। ठीक है, सो ये लो पीएच एसेंशियल है। किसके लिए एसेंशियल है? ताकि जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो वर्क कर सकें, वो ब्रेक कर सकें। ठीक है, सेलुलर वेस्ट को, डेब्रिस को, इनगल्फ जो पैथोजेंस हैं उनको। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर आता है फेलियर ऑफ लाइसोसोमल डाइजेशन। ठीक है, सो अगर ड्रग प्रिवेंट करता है, लाइसोसोम की एसिडिफिकेशन नहीं होता, तो लाइसोसोम डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। किसकी? वेस्ट की, डेब्रिस की, इनगल्फ पैथोजेंस की और इन सब की। चलो, सेल्स लैकिंग फंक्शनल सेंट्रोसोम्स कैन स्टिल फॉर्म स्पिंडल्स बिकॉज जिन सेल्स के पास फंक्शनल सेंट्रोसोम नहीं है वो फिर भी स्पिंडल्स बना सकते हैं। हमने तो सुना था कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम बनाते हैं, तो ये कौन सी बात हो गई? शाबाश, ये ऐसी बात हो गई यहाँ पर क्योंकि जो डीएनए, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमेटिन मेडिएटेड न्यूक्लिएशन हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इफ देर इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम, अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? इफ सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट देन ऑल्सो द स्पिंडल फाइबर विल टेक प्लेस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कम्स, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होगा, हाँ, क्योंकि क्रोमैटिन मेडिएटेड न्यूक्लिएशन जो होगी वो अक्कर करेगी। अब देखिए यहाँ पर जब मैं क्रोमैटिन मेडिएटेड न्यूक्लिएशन की बात करती हूँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है और जो इसके एसोसिएटेड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, मुझे चैट बॉक्स में आप बता दीजिएगा डीएनए जो है उसका चार्ज क्या है और हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, येट पता होना चाहिए। सो हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए या फिर डीएनए हो गया, इस प्रोसेस से क्या होता है? डायरेक्टली असेंबली होना शुरू हो जाती है रेगुलेटरी कंपोनेंट्स की या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाता है। Okay, cell possesses abundant smooth endoplasmic reticulum, peroxisome and mitochondria. It is likely specialized for। एक सेल है उसके पास बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये लाइकली स्पेशलाइज किस चीज के लिए है? क्या चीज इसमें स्पेशलाइज करती है? मतलब व्हाट इज दैट स्पेशलाइजेशन हेयर विच यू कैन ऑब्जर्व और विच यू कैन पुट ऑन? वेरी गुड, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ओके, ऑल राइट। सो देखो, एक दिया हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन, एक दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, एक दिया हुआ है सेल डिवीजन, प्रोटीन सिक्रीशन। सो करेक्ट आंसर आता है ए, जिसका मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब यहां देखो, म्यूटेशन जो है वो प्रिवेंट करती है कि साइक्लिन की डिग्रेडेशन बंद हो जाए, मतलब प्रिवेंट कर रही है डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी। ठीक है, अब इसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट किया जा रहा है तो क्या होगा? शाबाश। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिन बी डिग्रेडेशन जो प्रोसेस होता है ना, साइक्लिन बी डिग्रेडेशन सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिवेट करता है। जैसे ही आप डिग्रेडेशन करते हो साइक्लिन बी की तो ये इनएक्टिवेट कर देता है साइक्लिन बी CDK1 कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ड्राइविंग सेल्स आउट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से बाहर निकलते हैं और फिर सेल डिवीजन रुक सकती है। ठीक है, हाँ, और अब क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन नहीं हो रही है। अगर डिग्रेडेशन नहीं होगी तो माइटोसिस से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, म्यूटेशन जो है वो प्रिवेंट, अगर म्यूटेशन हो जाए कोई और वो प्रिवेंट करे कि हाँ अब से डिग्रेडेशन नहीं होगी साइक्लिन बी की, और अगर साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? इसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकलेगा कि जो आपके माइटोसिस है वो हो नहीं पाएगी प्रॉपर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जनरली साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन जब होती है तो उसकी वजह से साइक्लिन बी CDK1 कॉम्प्लेक्स जो है वो
इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये इनएक्टिवेट होता है तो सेल डिवीजन रुकती है, माइटोसिस रुकती है। तो अगर आपका ये इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा क्योंकि डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही साइक्लिन बी की, हाउ कम, आप कैसे सोच सकते हो कि एग्जिट होकर पाएंगे हम माइटोसिस को? वो तो चलता ही रहेगा प्रोसेस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अप टिल दिस वन। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दिस मच इज क्लियर. All right. So, my dear students, let's get to the next one. All right. Now, looking at the further question, a mutant strain of E. coli contain a defective DNA protein which is incapable of ATP binding. Which process would be most directly affected? E. coli एस्चेरिचिया कोलाई का मेरे पास एक स्ट्रेन है, ठीक है, जो डिफेक्टिव है, इसके इनकैपेबल है, एटीपी से बाइंड नहीं कर पा रहा, तो कौन सा इम्पैक्ट होगा? इम्फेक्ट, हाँ ऑब्वियस है। अगर ऐसा कुछ है जहां पर आपका एटीपी बाइंडिंग इनकैपेबिलिटी हो रही है, सो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इनिशिएशन ऑफ ओरी, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही सही नहीं होगा, तो प्रोसेस कैसे बनेगा? अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पोजेसेस 2 एक्टिव ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है। एक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है जिसके पास 2 रीजन्स हैं, एक्टिव रीजन्स, जिसको आप ओरी बोल सकते हो, और एक नहीं दो हैं। सो देयर मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस विल बी, इससे क्या होगा? क्या म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ म्यूटेशन कम हो जाएगा? क्या रेप्लिकेशन की स्पीड बढ़ जाएगी? क्या डीएनए सिंथेसिस में कंप्लीट इनहिबिशन लग जाएगा, रोक लग जाएगी? क्या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है वो उसका लॉस हो जाएगा? क्या लगता है आपको? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। अगर ऐसा कुछ होता है तो रेप्लिकेशन की स्पीड बन जाएगी, तेज हो जाएगा रेप्लिकेशन, दोनों तरफ से चीजें ऐड होना शुरू हो जाएंगी, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल लीड टू द रेप्लिकेशन स्पीड बीइंग मोर फास्टर। हाउ कम म्यूटेशन? म्यूटेशन कैसे बढ़ जाएगी? म्यूटेशन का तो चांस ही नहीं बढ़ने का, ठीक है। हमने ये कहा है कि 2 हमारे पास ओरिजिन है रेप्लिकेशन का, हमने ये तो नहीं कहा ना कि हाँ तो वो नहीं हो सकता, हमने ये तो बोला ही नहीं कि म्यूटेशन बढ़ रही है किसी भी एंगल से, ओके। DNA polymerase mutant retains polymerization activity, ठीक है, बट लैक्स 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब इस म्यूटेंट में क्या सजेशन आप दोगे कि क्या होगा? डीएनए के पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, तो बताओ क्या म्यूटेंट जो आपके पास आएगा उसमें क्या चीज जो है वो कमी होगी? किस चीज की कमी होगी? पर्टिकुलरली इफ आई वांट टू से व्हिच थिंग वुड बी लैकिंग इन इट, कौन सी चीज इसमें लैक करेगी? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर ऐसा होता है कि पॉलीमराइजेशन तो है लेकिन 3' to 5' नहीं हो पा रहा है, तो म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस तो है नहीं, और एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी जो है वो प्रूफ रीडिंग का काम है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करती है नॉर्मली, बट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेट करते गए। कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा यहाँ आप देखो तो डिफेक्टिव है? मतलब ये है कि अगर ये आपका एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रैंड्स बने, ठीक है, फोक बनी, रेप्लिकेशन फोक, तो मैं इसको ऐसे बनाना चाहूंगी, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब क्या होता है लीडिंग स्ट्रैंड में? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करती है नॉर्मली, बट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एक्यूमुलेट करते हैं, तो कौन सा ज्यादा डिफेक्टिव है यहाँ पर? तो देखो, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ के बनाने का काम कौन कर रहा था? शाबाश, लाइगेज। लाइगेज कैसे काम करता है? लाइगेज ग्लू की तरह काम करता है। इन क्वेश्चंस का पैटर्न भी बहुत बन चुका है अब, कि मतलब आपको क्वेश्चन देंगे कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। आपने देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऐसे ही आए हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल एज दैट, कि कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा इम्पैक्ट होगा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होने वाला है डीएनए लाइगेज। क्यों? बिकॉज इट्स एक्टिंग एज अ ग्लू, और ये लैगिंग को हेल्प करता है अलॉट। कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है बेस्ट कि क्यों जो जी डीएनए होता है वो बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स एज टू व्हाई जो जी डीएनए है, दिस इज द biological significance, like best one in terms of biological significance? Very good.
ZDNA जो होता है वो जिगजैग DNA होता है बेसिकली, और इसको सिग्निफिकेंट क्यों मानते हैं? देखिए होता क्या है कि जो ZDNA है पर्टिकुलरली, दिस इज ट्रांजिएंट लेफ्ट हैंडेड है ये, ठीक है, जैसे फ्लेमिंग के रूल पढ़ते हो ना, ये लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका कि ये जो टॉर्जनल स्ट्रेन है उसको रिलीव कर सके जब जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। सो कहीं ना कहीं अगर ZDNA जो है उसको हम बायोलॉजिकली सीक्वेंस सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इसमें जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज द प्रोफाउंडिंग रीजन ऑफ व्हाई डू वी यूज दैट। चलो, let's have a look at the next question. An alternative purine pyrimidine sequence is most likely to adopt. अगर अल्टरनेट प्यूरिन और पिरामिडीन का सीक्वेंस है तो वो मोस्ट लाइकली क्या अडॉप्ट करेगा आपके हिसाब से? व्हाट शुड इट अडॉप्ट और व्हाट विल इट अडॉप्ट? वेरी गुड। यस, सो इन एन अल्टरनेटिंग प्यूरिन पिरामिडीन सीक्वेंस वो क्या करेगा यहाँ पर? ZDNA अडॉप्ट कर देगा, ठीक है। अल्टरनेट है, अगर अल्टरनेट इन द सेंस अगर यहाँ ATTA इस तरह से है, अगर समझ रहे हो अल्टरनेट लगे हुए हैं तो इट इज गोइंग टू मार्क द ZDNA। क्यों बोला मैंने ZDNA? जिगजैग, समझ आई? ओके, compared with BDNA, ADNA possess more base pairs per turn, wider and shallower minor groove, left-handed helicity, no major groove. शाबाश। सो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ DNAs, ठीक है। लेट मी गेट यू to this one. So my dear students, let's take this beautiful pink color, and to understand this one, let's have a look. You have one called as ADNA, you have second called as BDNA, you have third called as ZDNA, ठीक है। अब जो ADNA होता है वो वाइडर होता है, ठीक है, ज़्यादा चौड़ा होता है। इतना ही नहीं, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, डिवाइड ऑफ वाटर, सेल्स में मिलता है, ठीक है। ZDNA नैरो होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है और जिगजैग होता है, ठीक है। BDNA कॉमन होता है, राइट हैंडेड फॉर्म होता है, कॉमनली यही हमें मिलता है। तो ये 3 टाइप आ जाती है इसमें, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, इसका ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस we are approaching these questions, right? So you need to know this. So अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो आप BDNA और ADNA को, तो क्या पोजेस करता है? BDNA और ADNA को कंपेयर करें तो ज़्यादा बेस पेयर पर टर्न, वाइडर एंड शैलो ग्रूव, ये देखो मैंने कहा, यहाँ देखो ADNA के साथ कंपेयर कर रहे हो, BDNA से A को कंपेयर करो, A जो है वाइडर है और इसका माइनर ग्रूव शैलो है। वाइडर से ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए एक DNA का मॉलिक्यूल है, उसको हम एक्सपोज करते हैं UV रेडिएशन के साथ, ठीक है। UV स्पेक्ट्रा हम उसे देते हैं अराउंड 700 नैनोमीटर तक, वो थायामीन डायमर्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखो जब भी मैं बात करती हूँ डाइमर्स की तो आपको याद रखना है, हाँ, whenever I'm talking about the term डाइमर, what do I mean? I mean एक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो किससे बना है? 2 सिंपलर आइडेंटिकल सिमिलर यूनिट्स के साथ, जिसको आप बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है। और ये बाउंड होते हैं आइडेंटिकल यूनिट्स बाय मींस ऑफ कोवलेंट, अगर तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर वीक हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के साथ ये बाउंडेड रहते हैं। सो ये थायमीन के डायमर्स बनते हैं अगर आप एक्सपोज करते हो DNA को UV रेडिएशन से। और अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर इज डिफेक्टिव, अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जब कोई टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको एक्सिशन से रिपेयर करने के लिए अगर जो हम यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, वही अगर डिफेक्टिव हो जाए और आपके थायमीन डायमर्स बन चुके हैं बाय मींस ऑफ द UV रेडिएशन, तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी डिजीज होने के चांसेस हायर नोट पे हैं? Which of the following do you think are or can be considered as a source of disease in that case?
वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, हरी अप, टेल मी। शाबाश। तो अभी आपको ये चीज़ें जो हैं अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखनी है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन नहीं रहा, तो आपको देखेंगे ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम बन जाएगा। ठीक है? तो आपको ये याद रखनी है। कौन सा रिपेयर पाथवे स्पेसिफिकली जो है वो करेक्ट करता है रेप्लिकेशन एरर्स को और एस्केपिंग द प्रूफ रीडिंग? कौन सा रिपेयर पाथवे है जो स्पेसिफिकली क्या करता है, करेक्ट करता है रेप्लिकेशन एरर्स को? सो द करेक्ट आंसर इज मिसमैच रिपेयर। अब मिसमैच रिपेयर में क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। मिसमैच रिपेयर एक हाईली कंजर्व्ड सेलुलर मैकेनिज्म होता है जो स्कैन करता है नया सिंथेसाइज डीएनए, रिकॉग्नाइज करता है कि एरर्स क्या हैं, उनको कॉपी करता है, जैसे मिसमैच बेस पेयर हो गया तो उनको एक्साइज कर देता है फिर। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है, नया जो डीएनए बना उसको ये स्कैन करेगा, चेक करेगा अच्छे से, फिर देखेगा कि एरर कौन से हैं। एक बार उसने एरर पकड़ लिया, उसको एक्साइज कर देगा। ये लो, ये रहा। कौन सा रिपेयर पाथवे स्पेसिफिकली करेक्ट करता है रेप्लिकेशन एरर्स को? तो जब रेप्लिकेशन हुई, इसने स्कैन करना है, स्कैन करके देखेगा कि दिक्कत क्या है। जब इसको दिक्कत के बारे में पता चलेगा, फिर ये प्रूफ रीडिंग करेगा। सिंपल। ठीक है, चलिए। डॉटर स्ट्रैंड synthesized opposite a methylated parental strand contains a mismatch. How does the bacterial mismatch repair system identify the incorrect base? क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो डॉटर स्ट्रैंड है जो सिंथेसाइज हुई ऑपोजिट अ मिथाइलेटेड पेरेंटल स्ट्रैंड कंटेन्स अ मिसमैच। अब इनमें मिसमैच है। कैसे बैक्टीरियल मिसमैच रिपेयर सिस्टम आइडेंटिफाई करता है इनकरेक्ट बेस को? तो वो हेल्प करता है इसको बाय मींस ऑफ लैक ऑफ मिथाइलेशन ऑन द डॉटर स्ट्रैंड। मिथाइलेशन ही नहीं होने देता, मिथाइलेशन नहीं होगी तो इनकरेक्ट बेस अपने आप ही रिपेयर हो जाता है। अब देखो, डीएनए ग्लाइकोसाइलेस है, प्राइमरली उसमें अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा? अगर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा? एब्सोल्युटली बेस पेयर रिपेयर इफेक्ट हो जाएगा। क्यों बेस पेयर रिपेयर इफेक्ट होगा? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बिकॉज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इज नॉट वर्किंग। अब देखो यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल डेफिशिएंट इन टेलोमेरेज वुड लाइकली टू शो। अब आप खुद सोचो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, बट प्रॉब्लम ये है कि उस यूकैरियोटिक सेल में डेफिशिएंसी है। अब किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? सो उसमें डेफिशिएंट है वो टीलोमेरेज में। तो आप बताएं कि वो क्या शो करेगा? तो अगर किसी में ऐसा है तो वहाँ टीलोमेर शॉर्टनिंग होगी। अगर कोई चीज़ डेफिशिएंट है तो उसकी क्या होने वाली है? प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग होगी। चेक दिस वन। एक रिसर्चर है, वो प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करता है और वो प्लाज्मिड में ओरी नहीं है, यानी origin of replication is not present. And if origin of replication is absent in that, what is most likely outcome? सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि आउटकम क्या निकलेगा? कॉन्जुगेशन बढ़ेगी अगर ओरी नहीं है, स्टेबल इनहेरिटेंस होगी, फेलियर ऑफ प्लाज्मिड रेप्लिकेशन होगी या इनहैंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बहुत अंडरस्टूड क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड? बेसिकली उसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है, हाँ, हमें चाहिए होता है ओरी, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर वही नहीं होगा तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ कि रेप्लिकेशन हो जाएगी? हाउ कैन वी थिंक कि डीएनए से डीएनए बन जाएगा अगर ओरी ही नहीं प्रेजेंट है? ओके, ओरी वो बॉलीवुड वाला नहीं, ओरी इज दिस वन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलिए, हैव अ लुक हियर एट द नेक्स्ट वन। कौन सा फीचर है जो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज से डिफर करता है? यानी डीएनए पॉलीमरेज वर्सेस आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, दोनों पॉलीमरेज हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। दैट इज व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन सेट इन अ वे in order to help you know about the same. Very good, my dear students. All right. So यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज द डिफरेंस इन द टू, अदरवाइज ऑलमोस्ट दोनों को टेम्पलेट चाहिए।
ठीक है, दोनों को टेम्पलेट चाहिए, दोनों को न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करना है, दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ओके, अब म्यूटेशन है, अफेक्ट करता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स को। ठीक है, टीबीपी वुड मोस्ट डायरेक्टली इम्पेयर। अगर म्यूटेशन हो जाती है टीबीपी में तो क्या इम्पेयर हो जाएगा, क्या किस में प्रॉब्लम आएगी? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है। वंस यू कम अप टू विद द फंक्शन, फिर आप बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, राइट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। सो ट्रांसक्रिप्शन में टीबीपी हेल्प करता है, बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। सो अगर टीबीपी इंपैक्ट हो जाता है बाय मींस ऑफ सम म्यूटेशन तो ट्रांसक्रिप्शन में इंपैक्ट आएगा, देयर विल बी द हाई इंपैक्ट ऑन द ट्रांसक्रिप्शन रेट। ये देखिए, the primary transcript which is synthesized by RNA polymerase II undergoes all except capping, polyadenylation, splicing, proofreading by DNA polymerase। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो सिंथेसाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 की वजह से, उसमें सब कुछ होता है, एवरीथिंग इट हैज, व्हाट एक्सेप्ट फॉर व्हाट, पॉलीमरेज 2, और वो भी आरएनए का है, तो ये ध्यान रखेंगे। सो देखिए, हाँ सब कुछ होगा इसमें कैपिंग होगी, पॉलीआइडेनिलेशन होगी, स्प्लाइसिंग होगी, टूटेगा, प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाएगी बाय डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट इज इम्पैक्टफुल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग कंट्रीब्यूट्स प्राइमरली टू, किसमें हेल्प करता है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग किसमें हेल्प करेगा? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग बेसिकली हेल्प करता है प्राइमरली टू डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन डाइवर्सिटी, म्यूटेशन रिपेयर या फिर क्रॉसिंग ओवर। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज योर प्रोटीन डाइवर्सिटी। देखो, अगर आपकी स्प्लाइसिंग अल्टरनेट हो रही है, एक ही पैटर्न में नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इट विल लीड टू समथिंग। व्हाट विल इट लीड टू? इट विल लीड टू, यस, प्रोटीन के वेरिएशन आएगी, प्रोटीन की डाइवर्सिटी में फर्क आएगा। अच्छा, ये चेक करिए, म्यूटेशन होती है एट द स्प्लाइस डोनर साइट ऑफ द इंट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज। अगर स्प्लाइस डोनर साइट पे इंट्रॉन के, हाँ, म्यूटेशन होती है तो मोस्ट लाइकली क्या होने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू यू, इन अकॉर्डेंस टू यू? प्रीमेच्योर एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है, या एबनॉर्मल एमआरएनए प्रोसेसिंग होगी, इनहैंस ट्रांसक्रिप्शन होगी, या डीएनए मिथाइलेशन होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल है, व्हाट इज द प्रोसेस, कि एमआरएनए ही प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्प्लाइस डोनर साइट ऑफ एन इंट्रॉन पे इट विल एक्ट, एमआरएनए विल इंटरैक्ट एंड वर्क। ये आपका एक मेंडल का क्वेश्चन है इनहेरिटेंस के बेसिस पे। मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो रेशो देता है 3:1, ठीक है, और वो रिजल्ट करता है डायरेक्टली फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से होता है, एलील्स की सेग्रीगेशन से होता है, लिंकेज से होता है, या फिर क्रॉसिंग ओवर से होता है। वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थॉटफुल है, wherein you think and then mark it. So my dear students, let's keep it really very simple. Basically, it is associated with what? It is associated with the segregation of alleles from during the gamete formation. ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, make it very sure that while I am reading the question, you're trying to analyze the question. And once you have analyzed the question, now what do? यस, अब आप फिर देखो कि आंसर क्या है इसका। जब आपका आंसर निकलता है, आई शो यू द आंसर, कंपेयर इट एंड कीप ऑन राइटिंग थिंग्स विच यू थिंक कि नहीं आपको पता है, एंड एट द एंड यू कैन जस्ट मार्क द क्वेश्चंस, नो, कि लाइक कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए। एक तो आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, नंबर 2 इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अ वे दैट यू विल गेट टू नो कि कितनी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मुझको है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल माय डियर स्टूडेंट्स। All right, now let's have a look here. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो वैलिड है ओनली व्हेन जीन्स आर, कब वैलिड है? जब जीन्स डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं, या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे अलग अलग होते हैं, सेक्स लिंक्ड होते हैं। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक इज करेक्ट बेसिकली?
So if I were to consider about this, I have to understand law of independent assortment. ठीक है, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? सिंपल है, इट स्टेट्स यू दैट जो अलील्स होते हैं अलग अलग ट्रेट्स पे, ठीक है, दे आर पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग, और वो इंडिपेंडेंटली पास होते हैं. ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली पास होते हैं एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो क्या होगा? ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज ड्यूरिंग द मियोसिस, जो वन ट्रेट के एलील्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करते दूसरे ट्रेट को, तो ये आ जाएगा ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स फार अपार्ट. वही एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए क्वेश्चन का मतलब भी तो पता होना चाहिए. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कम अप विद सर्टेन आइडिया. चेक दिस वन. एक टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल मैंने लिया, वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स. रेशो कितनी है? 45% ए बी, 45% स्मॉल ए बी, 5% हेट्रोजाइगस ए बी एंड 5% हेट्रोजाइगस ए बी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस केस में अगर आप ध्यान दें तो होमोजाइगस जो दोनों कंडीशंस हैं डोमिनेंट और रिसेसिव 45% बन रही है, 5% बन रही है हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में. सो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर आपने बहुत सारे वो बनाए हों, ठीक है, पनेट स्क्वेयर्स बनाए हों, तो यू वुड कम टू अ रियल आइडिया ऑफ वन थिंग. रियल आइडिया आपको ये मिलेगा कि हाउ what are the ratios coming out to be, and once you know about the ratios, then it becomes easy to identify what does it belong to, right? So if I talk about here, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कंप्लीट लिंकेज है, पार्शियल है या कोडोमिनेंस है, तो ये पार्शियल लिंकेज है. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो तो 45% ना आता, तो ये इट विल हेल्प यू फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दी पनेट स्क्वायर यू मेक. अच्छा, कौन सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस देता है अगेंस्ट द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कि जो उसके अगेंस्ट लिमिटेशन बता रहा हो? शाबाश. So the correct answer for this one is your reappearance of recessive traits in F2 generation. तो आपको पता है अगर F1 जनरेशन मेरी आई है कैपिटल T स्मॉल t, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, F1 जनरेशन मेरी आई है कैपिटल T स्मॉल t, तो जो आगे फर्दर जनरेशन आती है उसमें कहीं ना कहीं तो कैपिटल T स्मॉल t आता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेट्स आगे रिप्रेजेंट होते हैं, बट रिसेसिव ट्रेट्स भी आते हैं. जैसे कोई ना कोई एक आधा बीच में आ जाएगा स्मॉल a स्मॉल b, तो रिसेसिव ट्रेट्स भी फिर से डिपिक्ट जरूर होते हैं. Check the question number 23. A dominant allele exhibits 80% penetrance. Which statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से आपको बिल्कुल सही लग रही है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंट एलील अगर 80% पेनिट्रेंस कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके बचे हुए 20% फेल हो गए अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं. दो जीन्स अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 10% की, तो अप्रॉक्सीमेट मैप डिस्टेंस कितना होगा? 10% है तो 10 सेंटीमीटर. सिंपल. रिसेसिव लीथल अलील, लीथल डेथ कॉज करने वाला, मेंटेन होता है पॉपुलेशन में. क्यों? क्योंकि होमोजाइगस सर्वाइव करते हैं बेटर, हेट्रोजाइगस वायबल रहते हैं और एलील को ट्रांसमिट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर एलिमिनेट करते हैं या म्यूटेशन को प्रिवेंट करते हैं. तो हेट्रोजाइगस वायबल रहते हैं और एलील को ट्रांसमिट करते हैं, वेरिएशन कॉज करते हैं, सबसे ज़्यादा यही एग्जिस्ट करते हैं. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Alright, any doubts up till this much, my dear students, you can tell me in the comment box. But for now, we'll keep this much, and please keep on revising things very well because exams are on ahead. And yeah, let's meet in the next coming class. Till then, my dear students, take care. Have a wonderful day. Bye-bye.